बच्चों अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. We all know that hot water or milk, when left on a table, begins to cool gradually. Ultimately, it attains the temperature of the surroundings. To study how slow or fast a given body can cool on exchanging heat with its surroundings, let us perform the following activity. Take some water, say 300 ml, in a calorimeter with a stirrer and cover it with a two-hole lid. Fix the stirrer through one hole and fix a thermometer through another hole in the lid, and make sure that the bulb of the thermometer is immersed in the water. Note the reading of the thermometer. This reading T1 is the temperature of the surroundings. Heat the water kept in the calorimeter till it attains a temperature, say 40 degrees centigrade, above the room temperature. Okay, that is the that is the temperature of the surroundings. Then stop heating the water by removing the heat source. Start the stopwatch and note the reading of the thermometer after a fixed interval of time, say after every 1 minute of stirring gently with the stirrer. Continue to note the temperature T2 of water till it attains the temperature about 5 degrees centigrade above of that of the surroundings. Then plot a graph by taking each value of temperature delta T is equal to T2 minus T1 along y-axis and corresponding value of small t along x-axis. ओके, एक टेम्परेचर है, एक टाइम है ना. From the graph, you can infer how the cooling of hot water depends on the difference of its temperature from that of the surroundings. You will also notice that initially the rate of cooling is higher and decreases as the temperature of the body falls. The above activity shows that a hot body loses heat to its surroundings in the form of heat radiations. The rate of loss of heat depends on the difference in temperature between the body and its surrounding. जितना ज़्यादा डिफरेंस है उतनी जल्दी कूलिंग होगी. Newton was the first to study in a systematic manner the relation between the heat lost by a body in a given enclosure and its temperature. बच्चों, ये डे टू डे लाइफ में आप रियलाइज़ करते हो ऐसा? जब गर्मियों में आप दूध पीते हो तो बहुत देर लगती है उसको ठंडा होने में, और सर्दियों में आपका दूध फटाफट ठंडा हो जाता है ना. वो क्यों होता है? क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है बहुत कम है सर्दियों में, इसलिए हीट लॉस जल्दी जल्दी होता है ना. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट minus dq upon dt of the body is directly proportional to the difference of temperature delta T, T2 minus T1 of the body and the surroundings. Okay, जितना ज़्यादा difference उतना ज़्यादा heat loss. The law holds good only for small differences of temperature. Also, the loss of heat by radiation depends upon the nature of the surface of the body and the area of the exposed surface. एग्री करते हो बच्चों? जब आपकी मम्मी सुबह सुबह आपको स्कूल भेजना होता है तो क्या करती हैं? गिलास में दूध ठंडा नहीं होता तो सॉसर में डाल देती हैं, उसका एरिया बढ़ जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है ना. सरफेस एरिया बढ़ने से कूलिंग फास्ट होती है. तो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करती है कूलिंग, वो सरफेस पे भी डिपेंड करती है कितनी एक्सपोज्ड है सरफेस टू द सराउंडिंग्स. वी कैन राइट माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन. लिख सकते हैं ना बच्चों ऐसा, है ना. हीट लॉस इज इक्वल टू टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया. वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया and nature of the surface of the body. Suppose a body of mass m and specific heat capacity S is at temperature T2. Let T1 be the temperature of the surroundings. If the temperature falls by a small amount dT2 in time dt, then the amount of heat lost is dq is equal to ms dt2. कैसे आया बच्चों? ये एम एस क्या है? ये कांस्टेंट में आपने देखा ना, मास जो है वो एम है उसका, जो आपने सब्सटेंस लिया है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, तो के की जगह आपने यहाँ पे रख दिया एम एस, है ना.
तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू एम एस डी टी टू. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज गिवन बाय, ये तो डी क्यू तो आपने बताया कि कितना हीट है उसके अंदर, है ना. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज गिवन बाय डी क्यू अपॉन डी टी, यही है ना. लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू एम एस डी टू अपॉन डी टी. From equation 11.15 and 16, we have minus ms dt2 upon dt is equal to kt2 minus t1. देखो दोनों के राइट साइड में ये देखो ये इक्वेशन माइनस डी क्यू अपन डी टी किसके बराबर था, के टी टू माइनस टी वन. इसको आप इक्वल कर दो इसके एम एस डी टी टू अपॉन टी वन के. कर सकते हैं ना, दोनों राइट साइड बराबर हैं. बराबर कर दिए दोनों को क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है इसलिए. अच्छा, अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करो. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे के तो बाहर आ जाएगा, है ना. एम के अपॉन एम एस की जगह आप कैपिटल के लिख दो क्योंकि दोनों कांस्टेंट है. किसी भी लिक्विड का जो मास भी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी भी कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है ही. तो आप के को बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे और डी टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन का इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, है ना. सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बेस 10 की उसमें लॉग ई टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. अब एक लाइन उन्होंने मिस की है इसमें. अब हम ऐसा करेंगे, टी टू माइनस टी को जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी. तो ई की पावर माइनस के टी और ई की पावर सी. अब ई की पावर सी को हम सी डैश से डिनोट करते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. टी टू क्या हो जाएगा बच्चों, टी वन को दूसरी साइड लेके जाओ, इसमें से टी वन को दूसरी साइड लेके गए. टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस सी डैश ई की पावर माइनस के टी. यही वे इक्वेशन है. ये इक्वेशन इनेबल्स यू टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी थ्रू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर. किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अगर आपको देखना हो कि बॉडी किस तरह से टेम्परेचर गेन करेगी तो ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं. टी टू क्या है, टेम्परेचर कितना होगा उस बॉडी का, और टी वन जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है. उसके साथ आपको ये वैल्यू ऐड करके आप उसकी टेम्परेचर निकाल सकते हो. For small temperature differences, the rate of cooling due to conduction, convection and radiation combined is proportional to the difference in temperature. It is a valid approximation in the transfer of heat from a radiator to a room. The loss of heat through the wall of a room or the cooling of a cup of tea on the table. है ना, यही Newton's law of cooling can be verified with the help of the experimental setup shown in figure. ये experimental setup है to verify the law of Newton for cooling. Newton's law of cooling can be verified with the help of experimental setup. The setup consists of a double-walled vessel V containing water between the two walls. Look at the diagram. और अंदर क्या है, कॉपर का कैलोरीमीटर है कंटेनिंग हॉट वाटर इज प्लेस्ड इनसाइड द डबल वॉल्ड वेसल. 2 thermometers through the cogs are used to note the temperature T2 of water in the calorimeter and T1 of hot water in between the double walls respectively. Temperature of hot water in the calorimeter is noted after equal interval of time. A graph is plotted between log E base 10 T2 minus T1 or natural logarithm of T2 minus T1 and time T. The nature of the graph is observed to be a straight line having a negative slope. This is in support of equation 11.22. ये इक्वेशन को इसने सपोर्ट कर दिया. यही इसका ग्राफ खींचा है ना आपने, ये देखो log T2 minus T1 और टेम्परेचर टाइम के बीच में. स्मॉल टी डिनोट्स टू टाइम. एक साथ में एक न्यूमेरिकल है. पैन फिल द hot food cools from 94 degrees centigrade to 86 degrees centigrade in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius. How long will it take to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? The average temperature of 94 and 86 is 90. एवरेज निकाल लिया टेम्परेचर का. ये 70 डिग्री अबव है रूम टेम्परेचर से क्योंकि रूम टेम्परेचर आपको 20 डिग्री दिया है. अंडर दिस कंडीशन द पैन कूल्स 8 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना कम करना है आपको, टेम्परेचर 8 डिग्री कम हुआ है ना, देखो 94 से 86 हुआ है.
टू कितने मिनट टाइम दिया है, 2 मिनट में। तो बच्चों ये हम रख लें इक्वेशन में, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू के डेल्टा टी। तो चेंज इन टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, टाइम है 2 मिनट, और के इंटू 70 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है द एवरेज ऑफ 6। दूसरी केस में एवरेज जो है वो है कितना, 50 डिग्री अबाउ द रूम टेम्परेचर है ना, 70 डिग्री है ना एवरेज। तो के इज़ द सेम फॉर द सिचुएशन एज फॉर द ओरिजिनल। तो हम इनको बराबर कर दें बच्चों। व्हेन वी डिवाइड अबाउट टू इक्वेशंस वी हैव, टाइम कितना निकल के आएगा, 0.7 मिनट या 42 सेकेंड। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।